Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, where my task for the next few minutes is going to be to make the concept of economics from chapter number 1 a little bit more simpler for you. Okay, so in economics, in this particular chapter, what have we been doing till now? Well, we are almost at the end. Okay, आखिरी पड़ाव पे फर्स्ट चैप्टर के हम पहुंच चुके हैं, और वो जो फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका आपको याद दिलाने के लिए कि एग्जामिनेशन में, क्योंकि बहुत बच्चे ये पूछते हैं, सर इतना लंबा लिस्ट है, कुछ ऑप्शन है सर, क्या आप कोई चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो मैं बोलूँगा, मतलब मेरा यकीन मत करो, देख लो, ये बोर्ड अथॉरिटीज़ ने कहा है. एंड लुकिंग एट दिस, एवरी चैप्टर हैज़ बीन गिवन एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल वेटेज. ओके, उनका जो वज़न है ना, उनके कंधों पर मार्क्स का लगभग सेम है. तो वेरी सॉरी टू से, आई कैन नॉट रिकमेंड एट दिस वेरी मोमेंट. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, माई डेफिनेट प्लान इज़ टू टीच यू द एवरी कॉन्सेप्ट दैट इज़ अवेलेबल. एंड येस, एट द एंड ऑफ द ईयर थोड़ा कुछ हम लोग टैबुलेशन और एनालिसिस कर लेंगे कि हमको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है. बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू क्लोज द दरवाज़ा फॉर सम चैप्टर्स बाय सेइंग कि उसको ज़्यादा ध्यान देना, इसको कम ध्यान देना. ओके, हम लोग सब पे ध्यान देंगे, बिकॉज हमारे पास उतना टाइम अभी है. एंड आई होप वो जो प्रेशियस कमोडिटी है टाइम का, आप बराबर से इस्तेमाल कर सको. ओके, मूविंग ऑन. What are we concentrating upon? Well, for the last 1 or 2 lectures हमारा ध्यान मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है. तो माइक्रो हमने समझ लिया, उसके फीचर्स हमने समझ लिए, एंड उनके इम्पोर्टेंस को हमने समझ लिया कि माइक्रोस्कोप से, आई एम नॉट सेइंग वो वर्ड से आता है, बट उसका एक पार्ट है माइक्रो. दैट मीन्स इट लुक्स एट समथिंग, एक चीज़, और उसको बहुत बारीकी से देखता है. मैक्रो डज नॉट डज दैट. मैक्रो लुक्स एट द बिगर पिक्चर. ओके, हाँ, तो इन मैक्रो हम एक घर को, एक कंपनी को, एक सोसाइटी को नहीं देखते. ओके, हम पूरी जनता को देखते हैं, पूरी देश को देखते हैं. उसको कहते हैं मैक्रो वेरिएबल्स. ओके, लास्ट टाइम हमने विद द डेफिनेशन, विद द मीनिंग, हमने फीचर्स समझ लिया था ना. उसी फीचर्स में से importance पैदा होता है of macro economics. The first important about functioning of an economy. Okay, so not functioning of a household, functioning of one गली का दुकान नहीं, एक पूरी इकोनॉमी,
एक पूरी कंट्री की इकोनॉमी, बिहाइंड मी आर सो मेनी फ्लैग्स, सो यू कैन ओनली अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड एवरी कंट्री इज एन इकोनॉमी. ओके, किसका इकोनॉमी बहुत ऊपर के सुपीरियर लेवल पर है और किसी का एकदम नीचे गिरा हुआ है. मैक्रो इकोनॉमी की पढ़ाई जब होती है तो उस देश की इकोनॉमी, हमारे लिए भारत देश की इकोनॉमी कैसे कार्य कर रही है, अगर वो समझना है, गुड, बैड, अगली, खूबसूरत, हमको अगर समझना है तो हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेटली सीखना पड़ेगा. इट सेज मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइजेस, गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, पूरा देश का. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर पैटर्न ऑफ एग्रीगेटिव वेरिएबल्स इन अ लार्ज. एग्रीगेटिव का, एग्रीगेट का मतलब क्या है, मेनी थिंग्स जब एक ग्रुप में लाए जाते हैं, जब एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं तो उसको एग्रीगेट कहा जाता है. अगर वो इंडिविजुअल है तो वो अकेला है, उसकी पढ़ाई माइक्रो में होती है. सो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, द एंटायर, इज अंडरस्टूड when you do macroeconomics. Okay, moving on. दूसरा importance of macroeconomics, economic fluctuations. ये जो होता है, what does the word fluctuations means? उतार चढ़ाव. Okay, well, ये उतार होता है, ये चढ़ाव होता है. So अगर एक, again, घर की बात नहीं कर रहे हैं कि पिछले मंथ में तो मम्मी पापा की ये कमाई थी, भाई बहन का ये कमाई था, अभी थोड़ा कम हो चुका है. नहीं, हम एक घर की नहीं, एक पूरे इकोनॉमी या एक पूरे देश की बात कर रहे हैं. सो अगर हमको समझना है कि एक देश में, नाउ बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, नॉट जस्ट द पुअर कंट्रीज और द मिडिल लेवल कंट्रीज, इवन द बेस्ट सुपीरियर इकोनॉमीज, उनके भी यहाँ पे आउटपुट में, इनकम में इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ, बिकॉज पीपल लॉस्ट जॉब्स. जो लोग जॉब पे जाते थे उन लोगों को फुल टाइम रखने की जरूरत नहीं थी. कितने लोगों को कुछ महीनों के लिए कंप्लीटली काम से निकाला गया था, तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम हो गए, तो उसके वजह से देयर वाज अ ढलान, अ डिक्रीज, and that led to a fluctuations. And now everybody is trying, नहीं, इकोनॉमी को ओपन अप करो, मार्केट को ओपन अप करो, लोगों को ट्रैवल करने दो, वैक्सीनेशन के बाद में उनको परमिट करो, ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ाओ. एयरप्लेन्स, एयरपोर्ट्स, वो तो डेजर्ट बन गए थे. बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस देयर इज फ्लक्चुएशंस. And if you have to understand the fluctuations का असर on an economy, you have to understand macroeconomics. You have to learn the concept of macroeconomics. The third importance of macroeconomics. अगर आप macroeconomics की पढ़ाई करोगे तो आप क्या समझोगे? नेशनल इनकम आप समझोगे. You see, in the world, एक लिस्ट of the more wealthier nations, उसके बाद का, उसके बाद का, उसके बाद का, ओके, ये हर साल बनता है. जस्ट लाइक देयर इज अ लिस्ट ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन, सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट या इंसान, उसके नीचे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. सिमिलरली इफ वी वांट टू फाइंड आउट कि ये पूरा कंट्री, हमारा देश, भारत देश कितना कमाता है, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी. इट सेज अबाउट स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज brought forward the immense importance of the study of national income. ओके, ये एक राष्ट्रीय लेवल पर हमारा देश कितना कमाता है. वेल, देश कोई इंसान नहीं है, बट बना है इंसानों का, और वही इंसानों का, इंडस्ट्रीज का जो इनकम होता है वो देश जोड़कर एक तरीके से देश का इनकम बनाया जाता है. तो वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और वेदर इट इज स्टेबल, अगर वो सब समझना है आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है. Okay, the fourth मुद्दा in understanding the importance of macroeconomics, economic development. Well, every country और every country के चलाने वाली सरकार, गवर्नमेंट, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि उनको अगर 4 साल या 5 साल मिले हैं तो जो उनका देश है उसमें जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, सर्विस सेक्टर हो सकता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है, वॉट एवर आर द डिफरेंट सेक्टर्स, एडुकेशन बिकम्स अ सेक्टर.
उनके अलग अलग थिंकिंग होते हैं एंड वो अकॉर्डिंगली पुश देते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर, क्योंकि वो सेक्टर अगर प्रोग्रेस करे ऑटोमेटिकली पूरा देश भी प्रोग्रेस करेगा। ओके, तो इट इज नॉट कि देश की गाड़ी अलग है, नहीं, जब देश जिस हिस्से में बटा हुआ है, ओके, अलग अलग सेक्टर्स में जो बटा हुआ है, इफ देयर इज प्रोग्रेस, ओके, अगर वहां पे बढ़ोतरी हो रही है तो ऑटोमेटिकली द एंटायर इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री विल ऑल्सो शो डेवलपमेंट। एंड इफ दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपको ये समझना है कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरह लाया जा सकता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई जो है वो डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी। द फिफ्थ पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, एवरीवन, जब हम आप गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के पहले उसको खरीदने के लिए जाते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर में भी एक टेस्ट राइड ज़रूर करते हैं। अगर वो शोरूम में ना मिले, दोस्त को, रिश्तेदार को पूछ के, बिकॉज यू वॉन्ट टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर। जो भी चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है, जिस तरह की गाड़ी आपको इंटरेस्ट करती है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ओके, वो पेट्रोल वाली रहेगी, डीजल वाली रहेगी, सीएनजी वाली रहेगी या बैटरी वाली रहेगी, ओके, यू वांट टू नो द परफॉर्मेंस, स्पेशली इफ यू आर समबडी हु इज अ बाइकर, उनका थिंकिंग अलग होता है, ओके, तो उन लोगों के लिए परफॉर्मेंस बहुत बहुत बेहतर बन जाता, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर पूरे कंट्री का परफॉर्मेंस आपको नापना है, इट्स डिफिकल्ट, because if you ask your mummy papa who are individuals, पापा लास्ट ईयर व्हाट वर यू अर्निंग, आप कितना कमाते थे, पापा बोलेगी देखो ये पगार था, एग्जाम्पल 20,000, 15,000। अच्छा पापा अभी आप कितना कमाते हो, पापा बोलेगी मेरा प्रमोशन हो गया, मैं थोड़ा और एक्सपीरियंस बन गया हूँ, 1,000 10% बढ़ा दिया गया है। सो ऑटोमेटिकली यू कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ योर पापाज परफॉर्मेंस बढ़ गया है। बट फॉर अ कंट्री, एन इकोनॉमी, एन एंटायर थिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप व्हाट यू कॉल मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो, देन डेफिनेटली एज इट सेज अबाउट, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, मेजर, नापना, जो सिंपल नहीं है। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स आर यूज्ड to measure the performance of an economy over time by comparing the production of goods and services in one period with that of other period। के एक देश में, ओके, जो चीज़ों का उत्पादन हुआ था, आउटपुट, वो पिछले साल कितना था, वो इस साल कितना है, तो उसको कंपेयर किया जाता है एंड परफॉर्मेंस को गेज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। इज द परफॉर्मेंस गॉन अप और इज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन। सिक्स्थ मुद्दा इंपॉर्टेंस का फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ये जितना भी हम इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं ना, फॉर ऑल ऑफ दिस वी हैव गॉट टू अंडरस्टैंड मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट जब ये एक साथ में आते हैं तो मैक्रो की पढ़ाई आप सीखते हो। इट सेज टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी, एक देश कैसा चलता है, कैसे चल रहा है, कैसे इसमें बदलाव लाया जा सकता है, कैसे इसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स इज इंपॉर्टेंट। यस, मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज द बिहेवियर ऑफ टोटल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। हर देश में डिफरेंट कंट्रीज, भारत एक देश है, ओके, के अलग अलग क्या होते हैं, मुश्किलात होते हैं, डिफिकल्टीज होते हैं। तो अगर वो डिफिकल्टीज के लिए आपको एक सल्यूशन लेकर आना है, ओके, सो एजुकेशन इन इंडिया फॉर मेनी ईयर्स इज नॉट चेंज्ड, ओके, वही 20-30 सालों से वही पॉलिसी चलती आ रही है। नाउ देयर इज अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP लाया गया है, ओके, तो एजुकेशन को अगर ट्रांसफॉर्म करना है, टेलीकॉम इंडस्ट्री को अगर ट्रांसफॉर्म करना है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर ट्रांसफॉर्म करना है, दीज आर नेशनल लेवल ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको मैक्रो वेरिएबल्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी एंड ओनली देन विल यू अंडरस्टैंड द कि ये चेंज क्या प्लान, क्या पॉलिसी को लेकर एक्टिवेट करके किया जा सकता है एट अ नेशनल level. The
सेवेंथ मुद्दा, level of employment, very important. Many people leave their motherland जहाँ पर पैदा होते हैं and they go to another country thinking कि मेरे लिए मेरे ही देश में अच्छी नौकरी नहीं है, और अगर नौकरी है जो कमाई उसके साथ कनेक्टेड है वो काफ़ी कम है, मैं मेरा खर्चा, मेरे परिवार का खर्चा, होने वाले बच्चों का खर्चा मैं कैसे चला पाऊंगा, मैं एक अपने लिए घर, अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छा फ्यूचर कैसे दे पाऊंगा. सो आई रिपीट, एम्प्लॉयमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री. कि एक कंट्री, एक देश अपने देशवासियों को, जितने उसके देशवासी है, क्या काम दे सकता है, क्या उतना रोजगार वो पैदा कर सकता है. अगेन, उसके लिए देश को नहीं, बट उसके लिए देश के जो अलग अलग विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसमें बदलाव लाना ज़रूरी है, चेंजेस को लाना ज़रूरी है. और जब वहाँ पे व्हाट यू कॉल, उस सेक्टर पे ध्यान दिया जाएगा, उस सेक्टर पे अमल किया जाएगा, उस सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा. Example, okay, there are many people who do not enter sports. Okay, हाँ, एक हद तक क्रिकेट काफ़ी फेमस है, बहुत लोग क्रिकेट में जाते हैं, बट एवरीबडी can't be a cricketer. There are so many sports in the Olympics जो हम लोगों ने, okay, in this Olympics which was Tokyo 2020, okay, भवानी देवी, okay, ने फेंसिंग नाम का एक स्पोर्ट्स खेला, और काफ़ी भारतीयों को, 90% कोई आइडिया नहीं है. एंड अगेन, आई एम नॉट सेइंग मुझे पता है, चलो मैंने एटलीस्ट देखा है किसी को वो करते हुए, ओके, ओलंपिक के स्टेज पर. बट देन इट रिक्वायर्ड समबडी टू परफॉर्म एट दैट पर्टिकुलर लेवल, टू पुट इन अ गुड फाइट फॉर द एंटायर कंट्री टू बी टोल्ड इवन दिस इज अ पर्टिकुलर स्पोर्ट. ओके, तो काफ़ी लोग, मैनी पीपल, द स्पोर्ट्स पीपल, स्पोर्ट्स बिकम्स देयर एम्प्लॉयमेंट, बट वो कतराते हैं उसमें एंट्री मारने से. क्यों? बिकॉज दे आर लाइक कि स्पोर्ट्स थोड़ी मुझे खिलाने वाला है. मम्मी पापा लोग काफ़ी बार, जिन्होंने स्पोर्ट्स नहीं खेला है, जिनको स्पोर्ट्स का इतना सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस एंड महत्व नहीं पता होगा, वो बच्चे को बोलते, देखो भाई, पढ़ लिख लेना, स्पोर्ट्स अपने शौक के लिए करना, अपने हॉबी के लिए करना, बट उस पर निर्भर मत रहना अपने फ्यूचर का, अपने भविष्य का जीवन को जीने के लिए. ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ, ये एम्प्लॉयमेंट के साथ कैसे जुड़ जाता है कि अगर वो देश, ओके, उन स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देगा, more people will get attracted to that. Okay, if the sports people who are putting in, they are okay, अपना कतरा ओके, क्या बोलता है, खून का नहीं, ओके, अपने पसीना का उस स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो ओलंपिक जीतेगी, मेडल जीतेगी, उसी के बाद में उनको अच्छा पगार मिलना चाहिए. देयर हैज़ टू बी some amount of good payment being done when they are playing that particular sport and representing the country. Similarly, sports अगर उसको बढ़ावा दिया जाता है, राइट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में राइट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ओके, जो हमारा देश कर रहा है, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट का लेवल होप करते हैं, हम ये आशा करते हैं कि बढ़े. और जैसा ही एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ेगा, पर्सनल इनकम बढ़ेगी, पर्सनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, और जितने भी इसके पहले मुद्दे हमने डिस्कस किए हैं वो ऑटोमेटिकली उनकी भी गाड़ी आगे थोड़ी थोड़ी करके बढ़ने लगेगी. सो आई रिपीट माई सेल्फ, हमने क्या सीखा है? हमने 7 पॉइंट्स सीखे हैं जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको बताते हैं. दिस इज द लास्ट थिंग जो आपके टेक्स्ट बुक में है एज फार एज इंफॉर्मेशन ऑफ थियरी इज कंसर्न, विच इज नथिंग न्यू. इट इज जस्ट अ डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. अगर आप उसका फीचर्स लो और इसके फीचर्स लो, कुछ फीचर्स लेके आमने सामने बिठा लो, आपको ऑटोमेटिकली, सो प्लीज नोट सर इसके लिए अलग कुछ करना पड़ेगा, नो. एज एन व्हेन यू नो द फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो. फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग, वो तो हमने स्टार्ट में पढ़ा है. टूल्स की क्या यूज करता है ये, इंडिविजुअल डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई. स्कोप, ये क्या क्या पढ़ता है, सीखता है माइक्रो, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट, नेशनल इनकम,
जनरल प्राइस लेवल नेशन के लेवल पे, इंपॉर्टेंस जो हमने आज किया, वेरियस पॉइंट्स, उसके कुछ पॉइंट्स, इसके कुछ पॉइंट्स, थियरी, ये कौन सी थियरी की पढ़ाई, थीसिस की पढ़ाई करता है, ये प्राइस थियरी, ये नेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी जो आगे जाके आने वाला है, और एग्जाम्पल्स, इंडिविजुअल इनकम, यहाँ पे नेशनल इनकम। सो प्लीज ओके, इसके लिए एक्सपेक्ट मत करना कि मैं एक लेक्चर लूंगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक पे एक ही लेक्चर लिया जाए और वो बहुत लंबा ना रहे, सो दैट आपका जो ध्यान मुझे मिलता है मे भी करीबन एक 30 मिनट के लिए वो सटीकता से पूरी तरह से मिले। राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि सर जो आज आपने पढ़ाया इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कैसे याद रखें? वेल, अगर आप थोड़ा इधर देखो और थोड़ा इधर देखो आपको समझ में आ जाएगा मेरा इशारा किस तरफ है। आईपीएल फ्रेंड्स, हाँ, there is a possibility if you are not somebody who knows or who has seen a lot of American TV, maybe आपने ये सुना नहीं रहेगा, डोंट वरी, कभी ना कभी तो आप सुन ही लोगे। So what do we remember to get the 7 मुद्दास, okay, of importance of macroeconomics? First, IPL with friends. Everybody enjoys IPL matches. लंबे नहीं रहते, छोटे रहते हैं, ऐसे टाइम पे रहते हैं जब लोग काम से वापस आ जाते हैं, फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, और ख़ास करके जब आईपीएल के मैचेस चलते हैं ना, काफ़ी टेलीविज़न चैनल्स अपने अच्छे अच्छे सीरियल्स को बोलते हैं रुक जाओ, क्यों, लोग तो देख ही नहीं रहे, सभी लोग जाके आईपीएल देख रहे हैं, थोड़ा ब्रेक ले लो, आईपीएल ख़त्म होने दो उसके बाद में, बिकॉज व्हेन एन आईपीएल गोज ऑन द फैमिली कम्स टुगेदर, friends come together, and you can actually enjoy the good and the fast paced matches of the game of cricket. So first, IPL with friends, जो highlighted words है is what will help you remember the 7 points. And what are they? The following. F stands for functioning of an economy, national income, performance of an economy, everything is concerning an economy, not an individual, an economy, level of employment, economic fluctuations, utar chadav, economic development, and the last one which is just behind me, study of macroeconomic variables. So if you have to remember the 7 points of macroeconomics importance, first IPL with friends will definitely help you remember the entire thing. मुझे ये समझ में आता है कि सर हर पॉइंट के लिए ये शॉर्ट फॉर्म की क्या ज़रूरत है। मे बी सम ऑफ यू लेटर ऑन डिसाइड, सर मैं ये पॉइंट, ये वाला मैटर ये चैप्टर से करूँगा, वो वाला मैटर करूँगा, ओके, तो उसके शॉर्ट फॉर्म्स पे, कोडिंग पे आप ध्यान दे सकते हो, बट एटलीस्ट उसका एक कोडिंग डेफिनेटली आपके पास में रहेगा, विच विल मेक remembering all of this a little bit more simpler. Okay, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। हमारे चैनल की जानकारी अपने दोस्तों तक, आपके दूर दराज के फैमिली लोगों तक, आपके कॉलेज के सहपाठियों तक पहुंचा दीजिए, ताकि ये चैनल पे जो किया जा रहा है, ओके, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस फॉर दैट, उससे आपके और द पीपल दैट यू नो, उन सभी की मदद हो सके। ओके, आई होप पिछले कितने, हाँ, करीबन 20 मिनट में जो आपको पढ़ाया गया है, एवरीथिंग वाज यूजफुल टू यू। आपका टाइम वेस्ट मैंने नहीं किया है, जितने शॉर्ट में हो सके, जितने ईजीली हो सके, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट टू यू। वेरी सून वी विल बी समराइजिंग द एंटायर चैप्टर, और ख़ास करके जो इसके क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं जो चैप्टर के एंड में दी गई है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, एंड एज अ पीडीएफ फॉर्मेट टेलीग्राम और वेबसाइट के ऊपर ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेगा, आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए। ओके, टिल द टाइम वी मीट अगेन, कुछ खास नहीं जी, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, अपने छोटों का ख्याल रखने, अपने फैमिली मेम्बर्स का पूरी कोशिश करें, जितना हो सके घर रहिए, जब ज़रूरी रहे ओनली तब घर के बाहर जाइए, बट बी सेफ to the extent possible, stay indoors. Good day to all of you. God bless. Bye for now.